Hello students. So today we are going to start with the next very important topic of your physical chemistry syllabus, and that topic is thermodynamics and thermochemistry. Now, सबसे पहले looking at the topic thermodynamics and thermochemistry, वो क्या चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में आती है? The very first things that pop out in your head. Thermodynamics, okay, fine. This term is more closely related to the realm of physics. यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें फिजिक्स के एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे. फिजिक्स में आपके एक चैप्टर आएगा thermodynamics. That chapter and this chapter will go kind of, I would say, hand in hand. But then my advice to you is कि अगर आप केमिस्ट्री की thermodynamics पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट फिजिक्स thermodynamics पढ़ने के लिए मेक श्योर दैट यू हैव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 3 weeks in between at the most. ठीक है. So thermodynamics is more related to the realm of physics. Thermochemistry फिर भी chemistry word आता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ reactions देखेंगे, कुछ equations देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा chemistry का touch आएगा. But talking about thermodynamics is majorly oriented with physics. Now, सबसे पहले thermodynamics ये word जब हम देखते हैं, what is the first thing that comes in your mind? The very first thing that comes in our mind is the word thermo, meaning something associated with heat. अच्छा, this can't be only associated with heat. तो यहाँ पे हम make sure करेंगे that we write down the statement or we need to know what exactly is happening. Over here, we will make sure that thermodynamics is the study of flow of matter and energy. हम दोनों के बीच में relations देखेंगे, हम applications इतने नहीं देखेंगे, but definitely we'll try to understand few applications where energy and matter go hand in hand. Okay. Also, this topic majorly deals in what ways or the methods which convert energy from one form to another. हम already पढ़ चुके हैं that energy can't be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to other, right? तो हम लोग यही चीज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे. Now, before we start with the thermodynamics of your chemistry syllabus, मैं एक चीज श्योर करना चाहता हूँ, and this thing needs to be in your head till the time we are studying thermodynamics. And what is that thing? आप ध्यान रखोगे कि in chemistry, okay, whenever we are studying thermodynamics, we will always study the relationship, or we will always study what is the work done by the system on the surrounding. Okay, हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे या हम किसको स्टडी करेंगे? तो केमिस्ट्री में हम सिस्टम को स्टडी करते हैं. ओके, इन केमिस्ट्री वी केमिस्ट्स ट्राई टू स्टडी द सिस्टम, कि उस सिस्टम के अंदर जो गैस था या जो लिक्विड था उसको क्या हो रहा है, whether it is expanding, whether it is contracting, उसकी kinetic energy change हो रही है, internal energy change हो रही है. So we'll always try to look into system. हम surrounding की तरफ नहीं ध्यान देंगे. ओके, हमारे लिए सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर क्या काम करता है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आइडियोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड आइडियोलॉजी ओवर हियर बिकॉज फिजिक्स में आप सराउंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो एंड सिस्टम को कम इंपॉर्टेंस देते हो. यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक ऑफ केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है. तो केमिस्ट्री में हम लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी हम लोग काम कर रहे हैं, we will understand or we will make sure that we are dealing with system and the system working around the surroundings, or I would say system doing work on the surrounding. हम लोग सिर्फ सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. ओके, अब सबसे पहला टर्म which comes in your head, what exactly is a system? तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक लिंगोस पढ़ते हैं which would be used in thermodynamics and thermochemistry. The very first of it is system. Now what is a system? देखो, हम लोग right now we are studying, आप अपने रूम में बैठे हो, okay, you and me, we are what? We are a system right now. Okay, so we both, because we are both interacting with each other, definitely we will be called as a system. So what is a system? System is a part of the universe which is under observation. मान लो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर का गैस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या उस रूम के अंदर की लेट्स से आप एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो या टेम्परेचर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो रूम आपके लिए क्या हो जाएगा? वो रूम आपके लिए सिस्टम बन जाएगी. ओके, सिमिलरली व्हाट इज सराउंडिंग्स? सो सराउंडिंग्स इज everything
other than system. आपके रूम के बाहर जो कुछ भी चीजें होंगी, those would be referred as surroundings. Okay, या फिर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, we both are engaging each other. So we both, आप और मैं, we both are systems. Anything, any distraction outside this, आपका फोन, आपका let's say पेन गिर गया, पेंसिल गिर गई, everything other than this will be referred as what? Will be referred as surroundings. Okay. Further, the third point, what exactly is a universe? अब universe क्या है? Universe is plain system plus surrounding. Clear? No worries with this. अच्छा, अब एक और चीज आती है, देखो ध्यान से. जब भी आपके पास सिस्टम आएगी, you will have something called as system boundary. Meaning, जैसे आप एक रूम में बैठे हो, तो वो रूम आपकी सिस्टम है ना? वो रूम के अंदर का गैस आप स्टडी कर रहे हो, तो वो रूम आपकी सिस्टम है. अच्छा, उस रूम की जो बाउंड्री है, okay, those boundaries are separating you or separating your system from the outside environment. तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? वो बन जाएगी system boundary. So anything which separates the system and the surrounding, or the separation between a system and surrounding, will be referred as system boundary. अच्छा, ध्यान रखना बच्चों, system boundaries can be fixed or movable, rigid or flexible, real or imaginary. Let me give you an example. अगर आप बात करते हो, let's say आपके पास गैस है in a container, एक स्टील का कंटेनर है, उसके अंदर आपने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए. तो यहाँ पे देखो, आप इस गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब ये आपकी सिस्टम बन जाएगी. अच्छा, ये जो सिलेंडर था या ये जो आपका कंटेनर था, is it separating your surrounding from the gas particles या from your system? Definitely. So इसको हम लोग क्या बोलेंगे? This would be referred as a system boundary. अच्छा, in this case, is this system boundary rigid? जी बिल्कुल. अच्छा, same example अगर आप लेते हो एक बलून का, let's say you have a balloon and इसके अंदर आप कुछ गैस रखा है, आप इसको स्टडी कर रहे हो, then over here ये जो बलून है, again, is it acting like a separation between the system and surrounding? Absolutely yes. But this time क्या ये boundary rigid है? नहीं. This can change. इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बलून का शेप चेंज हो सकता है. So therefore ये बाउंड्री क्या हो जाएगी? ये बाउंड्री रिजिड, सॉरी, ये बाउंड्री फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो जाएगी, राइट? सिमिलरली, अगर एक सिंपल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको करना हो, देन व्हाट यू कैन से, देयर इज वन सिस्टम जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो. अच्छा, ये जो सिस्टम बाउंड्री है या ये जो वॉल है, इसको आप क्या बोलोगे? दिस वॉल विल बी रिफर एज सिस्टम बाउंड्री. ओके, एंड इसके बाहर जो कुछ भी रहेगा विल बी रिफर्ड एज सराउंडिंग. अच्छा, सिस्टम एंड सराउंडिंग साथ मिलकर क्या बना देंगे? यूनिवर्स बना देंगे. सो आई होप सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स का टॉपिक क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. अब देखो बच्चों, सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं? देयर कुड बी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. फर्स्ट वन इज द ओपन सिस्टम. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम? देखो, an open system is a system which can exchange both energy as well as matter with the surrounding. Energy and matter दोनों ही exchange कर सकता है. एक example is just a beaker or a cup filled with water or filled with any liquid. अब देखो, यहाँ पे because of evaporation क्या होगा? Because of evaporation ये water evaporate हो जाएगा. Okay, सिमिलरली सर, अगर हमने यहाँ पे हॉट वाटर रखा रहता तो वो थोड़ी देर के बाद कूल भी हो जाता है ना? मतलब व्हाट इज हैपनिंग सर, ये वाटर ना, ही इज नॉट ओनली एक्सचेंजिंग एनर्जी बट इज आल्सो एक्सचेंजिंग मैटर. यहाँ पे मैटर भी मूव कर सकता है, एनर्जी भी मूव कर सकती है इन द सराउंडिंग्स. सो दिस सिस्टम वुड बी रेफर्ड एज एन ओपन सिस्टम. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. लेट्स से अ सॉसर फिल्ड विद हॉट टी, इवन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. अच्छा, एन ओपन रूम, आपकी रूम अगर ओपन है, देन आपके रूम में से कुछ गैस बाहर जा सकती है, कुछ बाहर से गैस अंदर आ सकती है. अच्छा, रूम में अगर लेट्स से हॉट टेम्परेचर है, बाहर थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर है, देन डेफिनेटली द मूवमेंट ऑफ हीट विल आल्सो अकर. सो एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट की जा रही है, मैटर भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. देयरफॉर यू कैन से दिस सिस्टम बिकम्स एन ओपन सिस्टम. ओके, अच्छा, देन देयर इज वन मोर सिस्टम कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम. इसका मीनिंग क्या है? देखो, अगर इसी बीकर के ऊपर मैंने एक लिड लगा दिया तो क्या होगा? तो ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर पाएगा, ओके, बट क्या ये मास एक्सचेंज कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा. व्हाई? बिकॉज नाउ मास कांट एस्केप द सिलेंडर और मास कांट एस्केप द बीकर.
So therefore what I can say, a system which can only exchange energy but not matter, matter exchange नहीं कर सकता, energy exchange जरूर कर सकता है. Example क्या? तो यही बीकर जो हॉट वाटर से भरा हुआ था, उसके ऊपर आप एक लिड लगा दो, तो होगा क्या, वाटर यहाँ पे कंडेंस तो हो जाएगा, यहाँ पे आपको कंडेंसेशन मिल जाएगा वाटर का, मतलब वाटर इसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, बट पानी ठंडा तो हो जाएगा ना यार. एंड इफ वाटर इज गेटिंग कोल्ड ऑफ, देन ऑब्वियसली व्हाट यू विल से कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट की गई है, एंड देयरफॉर दिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है. फर्दर द थर्ड सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. अब तो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम. तो आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर नॉर इट कैन एक्सचेंज एनर्जी. वो दोनों ही एक्सचेंज नहीं कर सकता, ना तो वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना ही मैटर एक्सचेंज करेगा. एंड इन दिस केस एग्जाम्पल क्या है, तो वही बीकर. ओके, बट दिस टाइम मैंने इस बीकर के अराउंड वॉल्स लगा दिए which are acting like an insulator walls. Okay, and these insulator walls or this process would be referred as a process in which no heat energy can be transferred from the surrounding to the system or from the system to the surrounding. अच्छा, ये जो walls है, हम लोग ने बोला ये walls क्या है, इंसुलेटिंग वॉल्स है. इंसुलेटिंग मतलब ये हीट तो कंडक्ट करेंगे नहीं, है ना. अच्छा, इंसुलेटिंग वॉल्स को ही हम लोग एक और वर्ड से बोलते हैं, these walls they can also be referred as adiabatic walls. Okay, so what I can say that अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ध्यान रखना आइसोलेटेड सिस्टम्स विल ऑलवेज हैव व्हिच टाइप ऑफ वॉल्स, दे विल ऑलवेज हैव इंसुलेटिंग वॉल्स और एडियाबैटिक वॉल्स. ओके, एंड एडियाबैटिक वॉल्स दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू देम. अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज थर्मस फ्लास्क. ओके, थर्मस फ्लास्क में जो पानी है या चाय है या लेट्स से कॉफी, वो बहुत देर तक गर्म रहती है. सो व्हाट आई कैन से कि उसमें एनर्जी ट्रांसफर जो है वो क्या है, वो जीरो है या बहुत कम है. सी प्रैक्टिकली यू कांट हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, यू कांट हैव अ थर्मस फ्लास्क व्हिच कीप्स लिक्विड हॉट और कोल्ड फॉर इटर्निटी. ओके, आपके थर्मस फ्लास्क में जो चाय है या जो कॉफी है या जो गर्म पानी है, वो गर्म रहेगा, बहुत ज्यादा देर तक गर्म रहता है, बट हमेशा गर्म रहेगा क्या, नहीं. सो एक आइसोलेटेड, एक प्रॉपर आइसोलेटेड सिस्टम, 100% आइसोलेटेड सिस्टम बनाना is a very difficult task. It's a very challenging job, and rather you can't have it also. Okay, so what we try to do, we try to make a system which is near close to isolated systems. Okay, so क्लोज सिस्टम इस सिस्टम जहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं किया जाएगा, एनर्जी एक्सचेंज की जाएगी. ओपन सिस्टम जहां पे सब कुछ एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एज वेल एज मैटर. आइसोलेटेड सिस्टम जहां पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता. क्लियर. आइसोलेटेड सिस्टम्स में जो वॉल्स यूज किए जाएंगे, दोज वॉल्स वुड बी इंसुलेटिंग वॉल्स और एडियाबैटिक वॉल्स. एडियाबैटिक वॉल्स डोंट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू देम. ओके. अच्छा, what are the other types of wall which can allow the transfer of heat? Then those walls are referred as diathermic walls. Okay, तो जैसे adiabatic walls are insulating walls, वैसे diathermic walls are conducting walls. Okay, these walls are conducting walls. मतलब ये एनर्जी कंडक्ट कर सकते हैं. So these are conducting walls. ठीक है बच्चों, चलो एक क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को कितना कंसेप्ट समझ में है. ओके, सो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन ईच केसेस. सबसे पहला केस ए, देन बी एंड देन सी. ओके, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर दे. ओके, वीडियो पॉज कर लो, कोशिश करना कि इसका आंसर्स आप कर लो. ओके, एंड देन यू कैन अगेन प्ले इट. द वेरी फर्स्ट सिस्टम, सिस्टम ए. अच्छा, इसमें देखो, सिस्टम ए में आपने क्या किया है, तो आपने एक बीकर लिया है, उसके अंदर कुछ गैस एनक्लोज करके रखा है, या रादर एनक्लोज नहीं, कुछ गैस डाल के रखा है ना. ओवर हियर ये सिस्टम या ये जो कंटेनर है, इट्स नॉट क्लोज्ड, तो डेफिनेटली गैस एक्सचेंज किया जा सकता है. ओके, एंड सेकेंडली इसके ऊपर वॉल्स भी कौन से, नॉर्मल वॉल्स है, मतलब कंडक्टिंग वॉल्स है. सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन से, दिस सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी as well as matter, and therefore this type of system is an open system. ओके, इसको ध्यान रखना. ओके, चलो अगला देखते हैं.
अच्छा बी वाला है ना, थोड़ी देर बात करते हैं, पहले सी कर लेते हैं। चलो सी में चेक करो, आपने गैस लिया, गैस को एनक्लोज कर दिया है। अच्छा ऊपर से भी बंद है, नीचे सब जगह से बंद है बेसिकली। एंड देन वॉल्स आर विच वॉल्स? एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स आर इंसुलेटिंग वॉल्स, मतलब ये कंडक्ट नहीं करेंगे, है ना। सो देयरफॉर ना ये मैटर एक्सचेंज कर पाएगा, ना ये एनर्जी एक्सचेंज कर पाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को आप क्या बोलोगे? सो सच सिस्टम विल बी रिफर्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब आते हैं बी के ऊपर। अब देखो बी में, ओके, सबसे पहले बी में you have a piston and I'm telling you that this piston is a movable piston. ये piston move हो सकता है, okay? आपके पास walls है which are adiabatic walls, तो obviously adiabatic walls are insulating walls. मतलब क्या ये एनर्जी कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ओके? अच्छा यहाँ पे मैटर एक्सचेंज हो पाएगा क्या? तो मैटर एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। मतलब टेक्निकली ये कौन सा सिस्टम होना चाहिए? दिस वाज सपोज्ड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन प्लीज ध्यान रखना बच्चों, आप थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन, ओके, कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो, या आई वुड से रादर नॉट इवन वर्क डन फॉर दैट मैटर, लेट्स टॉक अबाउट हीट, ओके। आप हीट कैसे कैलकुलेट करते हो? तो हीट है ना, दो रिस्पेक्ट में, या हीट ट्रांसफर दो तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, ओके। द वेरी फर्स्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग हीट ट्रांसफर is with respect to energy, or I would say in layman's word with respect to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एनर्जी दी जा रही है, टेम्परेचर कम हुआ तो एनर्जी ली जा रही है, समथिंग लाइक दिस। या फिर सेकेंड इज वर्क डन, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, ओके, मीनिंग क्या है? लेट्स सपोज मुझे किसी को एनर्जी ट्रांसफर कर, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ओके। या तो मैं सीधा सीधा जाके उसको बोल दूं, हाँ भाई ये ले एनर्जी, ओके, दिस इज योर एनर्जी, डू द वर्क, फिनिश ऑफ, ओके। सो मैंने उसको एनर्जी दे दिया, दिस इज वन वे। या फिर मैंने क्या किया, उसका काम मैंने कर दिया, सो दैट उसकी एनर्जी कंजर्व हो गई। मेरे लिए एनर्जी लॉस था, बट उसके लिए एनर्जी कंजर्व, मतलब उसने एनर्जी क्या किया, उसने एनर्जी काइंड ऑफ गेन किया, ओके। उसका काम मैंने कर लिया। या तो आप किसी को पैसे दे दो काम करने के लिए, ओके, या खुद काम कर लो वो, राइट। सो दिस इज व्हाट टू वेज आर देयर। एक हीट ट्रांसफर जब आप बोलते हो, तो हीट ट्रांसफर कैन बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी और विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन। यहाँ पे बच्चों प्लीज ध्यान देना, बी वाले पोर्शन में आपने भले ही एडियाबैटिक वॉल लगा रखी है, लेकिन आपका जो पिस्टन है वो क्या है? वो मूवेबल पिस्टन है। मतलब अभी भी गैस एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। सो यहाँ पे गैस कुछ वर्क करेगा, एंड इफ गैस इज डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, राइट। अगर उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब व्हाट आई कैन से, वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ओके। एंड देयरफॉर यहाँ पे मास एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बट एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली हो पाएगा। अच्छा, एनर्जी एक्सचेंज और हीट ट्रांसफर इन व्हाट फॉर्म? इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, नॉट एब्सोल्यूट हीट, बट इन फॉर्म ऑफ वर्क डन। वो सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ एहसान कर रहा है, ओके। ही इज जस्ट गिविंग सम एनर्जी टू सराउंडिंग, और he is absorbing some energy from the surrounding by doing expansion और contraction। हाँ, अगर मैं बोल देता कि ये जो पिस्टन है ये immovable piston है, तो ये प्रोसेस क्या होता? तो definitely this process would have been an isolated system, but right now what I can say, this system is a closed system। इसको प्लीज ध्यान देना, this question has been asked in competitions, ओके। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ओके। जानबूझ के दिया जाता है कि तुम्हारे पास एडियाबैटिक वॉल्स है। हम ये सोचते हैं कि एडियाबैटिक वॉल्स मींस नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, एंड देयरफॉर वी ट्राई टू से दैट द reaction is what, that the reaction or the system is an isolated system, but it's not isolated, it's a closed system, okay। So this was all about the basic terminologies of thermodynamics with relation of systems and surroundings. Also over here we discussed about what exactly is system boundary. We had a few discussions about diathermic walls and adiabatic walls. In the next part of thermodynamics, we'll discuss about few more terminologies which would be used in the chapter. Till then, happy learning and keep studying.